Abhishek Kumar, founder of Janta Group. Basically, my organization is work in the field of LED light and robotics. Thank you. Ujjwal? Yeah. Hello everyone. I am Ujjwal Singh and I'm pursuing BCom from University of Allahabad and I'm also a founder and CEO of Yuva Allowed. Okay. Aman? Yeah, hello sir. Good evening. Namaskar. Myself Aman Raj Avasho. I'm pursuing graduation from University of Allahabad last year, from stream Bachelor of Arts, and I currently co-author of AU the Cinema of Thoughts. Thank you. Thank you. Sejit? Hello everyone, my name is Sejal Jain and I am currently working as country manager in learning while traveling. Thank you. Thank you. Saurabh? Hi everyone, I'm Saurabh. I run a company called Clear Deco. We are a budget optical retail chain. Thank you. Thank you. Anjan, are you there? Yes, I'm here. Hi, I'm Anjan. I'm based out of Mumbai and I run a boutique analytics firm based out of here. Thank you. Nandan? Hello everyone, my name is Nandan. I'm from Hyderabad. Right now I'm doing a project on why not bringing a page of faculty walls of 9th, 10th and plus 1, plus 2. My company name is Preceptors Education Services Private Limited. Thank you. Thank you. Atul sir? Hi, my name is Atul Kumar and I am in the business of helping entrepreneurs. I run a company called Ren Ventures in San Jose, California. Abhiru? Hi everyone, I'm undergrad at IISER Kolkata and currently I'm trying to build a healthcare startup. Thank you. Ravi? Ravi got disconnected. Neeraj, please. Hi everyone, Neeraj this side. I'm based out of Gurgaon, working in data related technologies. Thank you. Nikita, please introduce yourself. Are you there, Nikita? No, we'll continue later. Okay, so today's topic is about hiring the first 20 people in the startup. So we'll just learn from our experience as well as any tips that we can give or any problems that we face in growing the team to first 20 people. So let's just put a foundation here that there is a founder, let's say, and the founder is starting a company, right? So first thing the founder will need is a core team. Okay, दो लोगों का, चार लोगों का, maybe co-founder, maybe CXO level people, the initial stakeholders, let's say. So let's go step by step. So step will go more like founder, then co-founder, CXO, then comes, let's say, maybe some interns in the initial stage and some employees and maybe more employees later. So first 20 people will mainly be in the CXO, founder, intern stage, or maybe some partners also. Okay. So let's understand. I think what are the difficulties first. So maybe Ujjwal, can you share your experience or like how you formed your initial team? You are allowed. Yes sir, yes sir. मतलब बेसिकली फिर मेरे हिसाब से टीम को मतलब पर्सन्स इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा होता है मुझे जितना मुझे प्रॉब्लम आई और कुछ हमारे में मेल भी थे कुछ फीमेल भी थे मेरे टीम में पूरे इक्वल रेशियो था समझ लीजिए 50-50 का ही था और प्रॉब्लम हमारे तब आने लगी जब एक महीना 2 महीना बीतने लगा और प्रॉब्लम ये आती थी कि लोगों को लगता था केवल एक पर्सन का है ये युवा वेल आउट को फाउंडर ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे मुझे उनको बटरिंग करनी पड़ रही थी तो मेरे ख्याल से इस टाइप के को फाउंडर्स वगैरह की मेरे ख्याल से तो ऐसे होने भी नहीं चाहिए और जो तो टीम और पहले जाओ ये तो आगे बढ़ गए बहुत टीम कैसे फॉर्म हुई That's what ओके टीम मेरे और one person I guess right या अमन के साथ मेरी टीम बढ़ी
और हमारा कोई इतना बड़ा प्लान नहीं था और हमारा बस था कि इंस्टा पेज स्टार्ट करेंगे। पर फिर हम लोग ने काफी बड़े हुआ, फिर सर वन ने भी बोला कि इंटर्नशिप जॉब्स तो बहुत लोग करते हैं, कुछ अलग करो। तो फिर हम लोग ने फिर एक साक्षी थी हरियाणा से, फिर हम उसको अपने टीम में लिए और फिर मेरे कुछ इलाहाबाद के दोस्त आ गए। फिर ग्राफिक्स के लिए अलग अलग सिटीज हम लोग ढूंढने लगे। तो इस टाइप से हमने पूरी टीम बिल्ड की। और फिर प्रॉब्लम ये आती थी कि कॉन्फ्लिक्ट्स काफी होने लगी कि लोग मतलब कि अपने साथ एक साथ जुड़ना ही नहीं चाहते हैं, वो मतलब सोचते थे कि एक पर्टिकुलर पर्सन का है ये चीज। तो इसमें मुझे प्रॉब्लम आती थी कि मतलब सोचते थे ये सब मेरा है और कोई तो कर ही नहीं रहा है। लाइक इंट्रोड्यूस भी करता हूँ या पर्सनल जो ब्रांडिंग करते भी हैं जैसे विशाल सर करते हैं, तो मैं करता था, कोई और नहीं करता है कि मेरा ये है। बहुत होती लगी कि अपना पराये वाली। यस सर। शुरू के जो लोग मिले मेनली कर रहा है, शुरू के जो लोग मिले वो फ्रेंड्स ही थे। नो सर, अमन केवल मेरा फ्रेंड। फ्रेंड्स ही थे। नहीं नहीं नहीं, मेरा केवल अमन केवल दोस्त था। साक्षी से बस एक दो बार टेलीग्राम पे बात हुई और अमन ने उसको अपनी टीम में लाया। अमन के कुछ जोड़े, कुछ मेरे दोस्त जुड़े और फिर हम लोग ने कुछ लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक से जोड़ने की कोशिश की। इस टाइप से हमने टीम बिल्ड की। हमारे उसमें बहुत कम ही दोस्त थे, मैं तो बोलूंगा मैं और अमन ही केवल एक दोस्त है पूरी टीम। Sure. Okay. Let's. Okay, Aman, what's your experience from your direction, from your view? Okay. Yeah. Hello, sir. So, स्टार्ट हुआ था कम्युनिटी पे। एक दिन हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कम्युनिटी हाउ द राइट। एक दीवान भल्ला है, पता नहीं आप लोग जानते हो कि नहीं उनको। वो मार्केटिंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट से उनको माना जाता है। अभी अमर उजाला के वाइस प्रेसिडेंट है वो मार्केटिंग में। तो उन्होंने बस अपनी कम्युनिटी कि हमने सोचा कि कैसे बताया उज्जवल ने, तो उसको मैंने बोला कि हमने ऐसा प्लान है हमारा और तुम्हारी आइडियाज हमने एंट्री करी। और फिर बाकी क्या था कि हमने फाइंड ऑलरेडी हमने गूगल फॉर्म या फिर अलग कनेक्ट करके लोगों से सब सारी चीजें पता कर ली थी कि आखिर कौन बंदा क्या करता है। फिर हमने लाइक जैसा उज्जवल बताया उसकी कन्विंसिंग पावर या फिर सेल्स में अच्छा है। मेरा भी तो मतलब बातचीत में कर लेता हूँ, मतलब उतना अच्छा से नहीं कर सकता बट बात मैं सही से कर लेता हूँ। तो बात करी और उन लोगों को फिर अपनी टीम में रखा कि हाँ ये सही है, ये सही है। सबकी एक बार चेक किया कौन कौन सही है, जो एक्सपीरियंस थे उनको लिया और फिर इस तरह से टीम बनी। बट मेजर जो प्रॉब्लम मुझे लग रही थी वो कोर टीम पे थी कि कोर टीम को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना वर्क को, वो नहीं हो पा रहा था। ठीक है, लाइक मेरा स्पेसिफिक मैं हूं तो मैं क्या करूंगा, क्या क्या मेरे वर्क्स होंगे। मैं कभी ये करता था, कभी वो करता था, कभी वो भी काम करता था, मतलब 3-4 काम करता था। उज्जवल भी है तो वो एक दो चीजें पे करता था बट कौन मतलब किसका क्या काम फिक्स होगा वो डिसाइडेबल नहीं था। ठीक है, तो इसलिए आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट्स भी होती थी और सीधा वो नीचे तक भी असर जाता था कि नीचे वालों को भी हम लोग टीम में वो देते थे कि आप भी बताओ कि टीम में क्या करना है, क्या आइडिया पे हम लोग वर्क करना चाहते हैं। जब आप ये प्रेफरेंस कोर टीम के अलावा किसी को देते हो ना, तो फिर उनको एक होता नहीं कि आप टीम में बना रहे हो तो आप एक काम भी करोगे ना तो 1000 लोग कमेंट करेंगे, कुछ लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और फिर और वो अभी इनिशियल स्टेज पे लाइक कंटेंट मेरा आइडिया ये है तो कंटेंट वाले सोचेंगे कि नहीं नहीं ये तो कुछ अलग है, वो अपना कुछ अलग घुसाना चाहेंगे उसमें। तो पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो गलत हो जाती थी पूरा, और इस तरह से आपका 2-3 दिन तक फिर वर्क ही नहीं हो पाता था। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें थी। तो वही चीज है कि आपको अलग अलग एक चीज सीखने को मिला कि अलग चीज का एक डिपार्टमेंट होना चाहिए और एक आप किस चीज पे फोकस रख के वर्क करना चाहते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक मैं हूं तो मैं मार्केटिंग करूं या फिर कंटेंट ही करूं, बाकी सारी चीजें
जो दूसरा को फाउंडर है या फिर जो दूसरे टीम के लोग हैं वो करे तो ज्यादा बेस्ट होता है। इस तरह से टीम मिक्सिंग नहीं हो पाती। अच्छा, तो ये सीईओ का डिसीजन कैसे हुआ? कौन सीईओ बनेगा या कौन क्या बनेगा? एक्चुअली लेट्स से सीईओ का डिसीजन कैन बी द मोस्ट क्रूशियल। ये सर गुस्से में सब लोग बना दिए मुझे, ये ऐसा था। तो वो थोड़ा डिफरेंट हो गया, वो मैं बनना भी नहीं चाहता था, ये लोग ने जबरदस्ती बना। नहीं तो बताओ, तुम्हारा जैसा कहानी बहुत लोग का होगा, हो सकता है। नहीं तो सीईओ का तो गुस्से में बना दिया मतलब नहीं समझ में आया मुझे। गुस्से में तुम बन गए या बना दिया लोग? नहीं गुस्से में नहीं बनाया गया था सर। लाइक देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था ये सारी चीजें, ठीक है, तो स्टार्ट में सोचा था कि अब मेरा रहेगा कि मेरा को फाउंडर एंड सीईओ का टाइप से, ठीक है, कि मैं करूंगा इस पे। बट बाद में मुझे ऐसा लगा कि उज्जवल इसमें ज्यादा परफेक्शनिस्ट है और मेरा ऑलरेडी पोइट्री सोसाइटी वगैरह चल रहा है, तो मुझे लगा मैं उसमें 100% दूंगा, बट उतना नहीं दे पाऊंगा जितना उज्जवल दे सकता है या फिर कोई और लोग दे सकते हैं। और ना ही मेरा प्रोफाइल पे सूट करेगा। लाइक लिंक्डइन पे कहीं भी अपडेट करता हूँ तो वो भी सूट नहीं करेगा। एक बंदा दो कंपनी कर रहा है, एक फाउंडर भी एक को फाउंडर भी है, राइट? तो आई थिंक बहुत सारी चीजें थी, तो उसके लिए मैंने बोला कि उज्जवल इज द राइट पर्सन फॉर इट। एंड उसके बाद मैंने उसको दिया, तो काफी लोगों को पता है, जब मैंने टीम में ये बात की कि सीईओ हम लोग उज्जवल को रखना चाहते हैं, तो सबने एग्री करा कि हाँ वो काफी लोग से बात कर चुका है, उसके वर्क आइडियाज भी अच्छे होते हैं, तो फिर सबने एग्री किया। तो फिर उसके बाद सीईओ डिसीजन हो गया सर फट से। बट ये तो बोल रहा है गुस्सा में बने, तो कुछ तो दोनों से एक तो कोई झूठ बोल रहा है। कौन बोल रहा है? उज्जवल, अब तुम्हारी कहानी, कैसे सीईओ बेदर्दी से कैसे बनाएंगे? सर बेसिकली ये प्लान पहले मैं जब आया था इसमें मुझे लगता नहीं था कि मैं बहुत बड़ा कन्विंसिंग, क्योंकि मेरे कभी दोस्त रहे नहीं है स्कूल टाइम से या कुछ, पर मैं जैसे जैसे आते गया इसमें और मेरी पूरी लाइफ ही चेंज होती गई। मैं तो बोलूंगा, मैं पहले जो 3 महीने पहले आप मिले होगे और मैं अभी मिल रहा हूँ, तो मैं काफी चेंज आ गया है। लाइक मैंने बहुतों को अपनी टीम में, मैक्सिमम जो इतने भी टीम थी मैं बिल्ड करता था। ग्राफिक डिजाइनर भी इंस्टाग्राम से ले आता था। अमन भी बोलता था यार तुम कैसे बात कर लेते हो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, कैसे लिंक्डइन पे बात हो जाती है बट इंस्टा फेसबुक पे कैसे बात कर लेते हो। और कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती थी कि मतलब टीम को बिल्ड करने में, और आइडियाज कोई नहीं देता था। प्रॉब्लम ये थी, मैं बहुत बार चिढ़ भी जाता था कि सजेशंस मैं दे रहा होता हूँ तो बस वो बोल देते हाँ ठीक है। फिर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता था, मैं सुनाता भी बहुत था, ये क्या है मतलब हाँ ठीक है, मतलब मैं ही थोड़ी ना हूँ, ये मेरा थोड़ी ना है। मैं बहुत बार बोला, फिर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। तो बेसिकली मेरा जो था, फिर मैं बहुत लोगों को कन्विंस करता था और इसी बहाने मेरे बहुत ज्यादा दोस्त बन गए हैं। लाइक ऑल ओवर द इंडिया 10 से 20 लोग बन चुके हैं मेरे। इतने तो कॉलेज में भी दोस्त नहीं है इस टाइम। तो मुझे लगा कि यार मेरा सही है, मैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए राइट हूँ और मैं आइडियाज भी रोड पे मैं करता था। लाइक एक बार सत्तू वाले सर आए थे तो उन्होंने भी बोला था कि तुम बिल्कुल खो जाओ उसमें, और मैं खो ही गया था, समझ लो कि मतलब कि अभी भी खो ही गया हूँ। सड़क पे कोई बंदा चल रहा है तो मैं देखता था 12th का बंदा है तो मैं उससे बोलता था अच्छा सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर तो मैं तुमसे कनेक्ट करता हूँ। मतलब जनरली मैं ऐसा करता नहीं था, तो मैं बिल्कुल उसी में एकदम इंडल्ज हो गया था कि नहीं यही मेरी जिंदगी है। मैं पढ़ाई वढ़ाई भी काफी रखा हुआ हूँ, सब मैं अपने आप ही करता हूँ, मैं ही सबको चार्जअप करता था, अच्छे अच्छे मोटिवेशन वीडियोस भी डालता था, प्लस सबसे टीम में बटरिंग, थैंक यू, कैसे हो, कोई गलती तो नहीं हो गई, ये सब पूरा मैं ही करता था। बेसिकली जो लीड वाला काम होता था। मुझे सारी स्किल्स तो नहीं है बट किस चीज को कैसे काम करवाना है ये मुझे काफी अच्छा आता। दैट्स व्हाई मेरे ख्याल से इन लोगों ने मुझे सोचा होगा मैं सीईओ बन। एग्जैक्टली सर, बता दिया असली सीईओ क्यों था ये। बोल रहे हो करते थे मतलब अब नहीं करते हो क्या? नहीं करते हैं बट अभी बहुत कम हो रहा है, अभी कुछ दिनों से जोश ठंडा हो लंबी गया। स्टोरी चल रही है एक्चुअली। तो सर जोश ठंडा नहीं हुआ है, टीम का जोश ठंडा हो गया है। ठीक है, टीम का तो जोश ठंडा हुआ एक चीज है। मैंने आज ही जीडी कराया, ऐसा नहीं है सर, मैंने ऐसे ही बेसिक क्लास 11 12 के साथ प्लस डॉक्टर इंजीनियर बहुत डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को बुलाया और बढ़िया जीडी हुआ। आज 10-20 लोग भी आए हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है, आज भी हुआ।
नहीं, तो क्वेश्चन है कि तुम सड़क पे पकड़ रहे हो कि नहीं 12th वाले बच्चे को? मैं अभी भी पकड़ रहा हूँ, मुझे अभी भी मिल जाएगा तो मैं पकड़ लूंगा, टीचर से बात करता रहा। तो मैं तो जिस टीचर से कभी मेरी बनती नहीं थी मैं उनको कॉल कर रहा हूँ सर और वगैरह वगैरह टाइप में, तो उनको भी बटरिंग कर रहा हूँ कुल मिलाकर। ओके, ठीक है, आते हैं तुम पे फिर से। अभिरूप, you contacted me a few weeks ago regarding your hiring Yeah. problems, right? Can you share that to everyone, please? For me, it took around 2 months to build my core team. And what I learned that few points you must keep in your mind while screening someone for your core team. The first is like that person should believe in your vision. Secondly, he should have the required skill sets which is needed in the startup. And third, like he should play the role of all-rounder if required in future. Like he should do anything which is required to take the startup up. Like these three things, like the main point which I like on which I screen the person for my core team, and I have 6 members in my core team right now. Yeah, so a bit in detail, like how you got the first one. First one is like my batchmate. Like I discussed, like I put this thought that I have this startup thought, and that the person named Yusuf contacted me. Yeah, it is very interesting, and I want to be a part of. Then suddenly I didn't like bring him in core team, but I like started talking about what are your thoughts, give me your ideas, like suggestions. Then he regularly like used to talk with me, like from his side he give me inputs like we can do this, we can do this. So I found that like this guy is really seriously interested in this startup, so I bring him. So he's my co-founder. Then from LinkedIn we started like posting these like jobs key, we need some guys. Then we started screening of the person. Then like this we got around 6 people. So total 2 plus 4, right? Or yeah 2 plus 4. And took you 2 months, right? Yeah, 2 months. So anybody in this is salaried or like no partners equity kind of thing? All the partners right now I can't pay. Okay, ठीक है। आई थिंक उज्जवल के केस में भी वही है। अच्छा, थोड़ा सा दूसरे सेक्शन में आते हैं। अभिषेक जनता, तुम्हारे एलईडी में yes. पहले एम्प्लॉय या पार्टनर या कुछ भी, हाउ डिड यू फाइंड योर फर्स्ट 5 या फर्स्ट 10? नहीं, फर्स्ट तो एक मेरा पार्टनर था, वो दोस्त ही था, पर अच्छा काम नहीं किया तो उसको मिला कहाँ भगा पे? दिया मतलब ऑफिस में, स्कूल, कॉलेज में? नहीं, वो मतलब हम लोग वो बचपन से ही साथ में पढ़े थे लोग, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में कोई पार्टनर भी नहीं मिल पाता है, तो जबरदस्ती पकड़ के बनाना पड़ता है कि भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल रहे हैं, 2 आदमी कंपलसरी है। तो और उस समय शौक भी था कि हाँ भाई कंपनी के फाउंडर कहलाएंगे, प्राइवेट लिमिटेड होगा, तो जबरदस्ती लाए थे। बाद में उसको भगा दिया और अपना फैमिली वाला तो बचपन का दोस्ती साइड हो गया अचानक से? वो बिजनेस अपने जगह, दोस्ती अपनी जगह, और क्या। दोस्त बना है अभी कि दोस्ती भी चला गया? कभी कभी बात हो जाता है, महीना 2 महीना पे, और क्या। अच्छा, ओके। पहले भी ऐसी था या मैं रिलेशन पे नहीं असर पड़ा इससे, या रिलेशन ठीक है? बहुत ज्यादा पड़ता है। अरे दोस्त एक जाएगा 1000 आएगा, उसमें क्या है, लेकिन बिजनेस अच्छा से चल रहा है। नहीं तो आई मीन क्वेश्चन ये है कि दोस्त को बनाना चाहिए कि नहीं पार्टनर, ये क्वेश्चन पे आ रहा है। नहीं बनाना चाहिए, कभी नहीं बनाना चाहिए। ओके, ठीक है। हाँ, और थोड़ा रीजन बताओ क्यों नहीं बनाना चाहिए, क्या मतलब क्या खराब होता है क्या? इसका रीजन है कि मतलब एक तो आप उसके साथ खुल के बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, और वो भी आपके साथ नहीं बोल सकता है, और खास करके आपके साथ जो पढ़ा रहता है ना, उसका भी अक्कर रहता है। मान लीजिए कि आप ज्यादा ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो मेरे साथ होता था, तो उसको भी अक्कर रहता था कि अरे मेरे साथ पढ़ता है, क्या वैल्यू देंगे इसका, एक होता है नहीं अपना वाला, कहीं उतना रेस्पेक्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन दोस्ती अपने जगह पर है, प्रोफेशनल लाइफ अपने जगह पे, वो मेंटेन नहीं हो पाता है। और मेरा एक रीजन और था कि मतलब हम एंटरप्रेन्योरशिप में आए थे, तो मेरे को रियल में शौक था कि मतलब मेरा मालिक कोई ना हो, ठीक है। तो एक मेरे बीच में अरंगा भी आ रहा था कि बार बार बोलने के लिए, सोचे कि जाओ अब जो भी है एम्प्लॉय टाइप का, तो जो है सो खुद है, अपना मालिक खुद। ये मेरा शौक था, इसको बोलिए हम अपना शौक पूरा कर रहे हैं।
और एक चीज और बोलना चाहेंगे, जो लोग मतलब ये स्टार्टअप करते हैं, क्योंकि हमको बहुत बड़ा धोखा मिला है और बहुत बड़ा सीख भी है कि जैसे एज फॉर एग्जांपल फ्रेंचाइजी सेल कर रहे हैं या आपका प्रोडक्ट बेस का कंपनी कुछ भी है, अपने रिलेटिव को कभी मत रखिए। बहुत बड़ा मिसयूज होता है। अभी मेरा प्रेजेंट डेट में हम भी एक गलती किए थे, रिलेटिव को रख लिए थे। ऐसे बहुत सारे आदमी है कि मेरा पैसा लेकर रखे हुए हैं, और इस टाइप के रिलेशन है कि हम चाह के भी नहीं मांग सकते हैं, बोलने में भी शर्म आता है। जाओ सामने मिलते हैं लेकिन एक बार वो पैसा का नाम भी नहीं लेते। तो रिलेशन में तो वो बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। लॉस छोड़ के वो प्रॉफिट होने वाला है श्योर, इसके लिए 100% है रिलेशन और बिजनेस। ओके, ठीक है। तो सौरभ, व्हाट्स योर टेक? अभी थोड़ा सा स्टोरी सुन लिया तुमने, इनिशियल 5 लोग 4 लोग या दूसरा ही लोग कहाँ से मिले, कैसे मिले, दोस्त को रखना चाहिए कि नहीं? व्हाट्स योर टेक? बहुत सारे सवाल हैं और कुछ के आंसर बहुत कॉन्फिडेंशियल है, तो मैं वो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ठीक है, जनरल जनरल मैं टिप्स बता देना है देता हूँ। सबको, अपना जनरल कहानी टिप्स नहीं शेयर अगर, करना है। हाँ, तो पार्टनर के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि पार्टनर हर के अपने रीजंस होते हैं पार्टनर चुनने के। फॉर एग्जांपल माय पार्टनर वाज माय जूनियर, वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट टुगेदर। हम साथ पढ़ते नहीं थे, लेकिन हम लोग नेबर्स थे, एंड हम लोग का अच्छा बॉन्ड है, और हम लोग का फ्रीक्वेंसी मैच करता था, एंड बोथ ऑफ अस वांटेड टू डू समथिंग, एंड बोथ ऑफ अस वर वेरी एवरेज इंटेलेक्चुअली। वी वर नॉट विनर्स और टॉपर्स, तो हम लोग एवरेज थे, तो दैट इज व्हाई हमारे में वो ज़ील था कुछ बड़ा करने का। और सो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड, मतलब वी सिलेक्टेड ईच वन ऑफ अस। एंड रही बात टीम हायरिंग की, तो मेरा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट व्यू पॉइंट है। व्हाट मेरे हिसाब से you should not find the people if they have the skill set, if they have the skill set to do the KRAs which you define. For example, अगर आपको CTO चुनना है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप एक टेक का फाड़ बंदा लो। मेरा उल्टा मानना है, जब हमने उल्टा लेना है कि सामने वाले बंदे को क्या चाहिए, if you can provide that, then he can be part of your core team, rather than we finding a person who is highly intellectual or highly tech savvy or highly or a domain expert. क्योंकि अगर मैं अपनी टीम की बात करूं, मेरी टीम जो हमने हायर करी थी फर्स्ट 2 years, एक भी बंदा हमें छोड़ा नहीं, not even a single person left clear देखो in the first couple of years, and none of them were very high paid resource, or none of them were intellectual resource, none of them were domain expert. आज के टाइम पे क्लियर देखो, when we are having 60+ outlets, जो मेरे डिपार्टमेंट हेड्स हैं, जो 2-3 मेन डिपार्टमेंट हेड्स हैं जिनके बिना कंपनी चल ही नहीं सकती है, both of them are not even, मतलब कि वो बीटेक तक नहीं है, they are not, for example मेरा जो बैकएंड टीम है, जो अकाउंट रिकंसिलिएशन करता है, स्टोर का डेली कितना पैसा आ रहा है जा रहा है, तो यू नीड अ पर्सन हु इज स्ट्रांग विथ फाइनेंस। या आप आइडियल केस में अगर आज मेरी कंपनी, आज मेरे पास मतलब आज के स्टेट में अगर मैं किसी को हायर करूं, तो मैं अपना जो फाइनेंस हेड होगा, मैं उसको एक MBA से IIM से उठाऊंगा, या कहीं अच्छे कॉलेज से B स्कूल से उठाऊंगा और अच्छे सैलरी पे उठाऊंगा। पर आज जो मेरा पूरा बैक एंड फाइनेंस हेड कर रहा है, ही इज नॉट इवन एन MBA, ही इज नॉट इवन अ फाइनेंस गाय, ही इज जस्ट एन एवरेज गाय। उसी तरह, एंड ही इज द डिपार्टमेंट हेड। एंड उसी तरह जो मेरा NSO है, न्यू स्टोर ओपनिंग, विच इज की स्टोर बनने का जो जिम्मेदारी है, जब हम 11.5 लाख रुपए लेते हैं और वो लेने के बाद जो स्टोर डिलीवर करने का जो भी काम है, वो एक डिपार्टमेंट संभालता है, जो फैब्रिकेशन करता है, उसका जो हेड है, वो that person is not a civil engineer, that person is not from
fabrication background. That person was a customer care executive prior to joining me, and that person matlab, rose up the ladder, and now that person is heading a department. So what I'm trying to say is कि you don't need a skilled resource to एक second मेरा ये sorry, you don't need a skilled resource or a domain expert to head a department or to be part of the core team. You need average people whom you are able to give what they want, rather than finding a person जो skills आपको चाहिए आप वो ढूंढो. उससे better है कि सामने वाले बंदे को वो चीज दे दो जो उसे चाहिए, और काम आपको जो कराना है करा लो, वो कर लेगा. You don't need skills to do that work. I don't know if I made sense, but this is how we hired. सारे के सारे we today have 100 employees और मेरे ख्याल से 90 have been hired by me. मतलब हायरिंग तो हमने 200 करी होगी और 100 लोग बाद में छोड़े या 150 करी होगी, तो 100 की हायरिंग तो मैंने खुद की होगी. So it is very important to understand what an employee looks for and whether you can give that or not. Otherwise आप जितना भी skilled resource ले आओ वो छोड़ देगा आपको. Sure. अतुल सर आपका कुछ टिप्स यहाँ पे? हाँ, तो मेरा मानना है कि आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी भी स्टार्टअप के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, नंबर 1 तो आप खुद हो, तो आपको अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए. और दूसरा आपकी टीम. तो टीम में मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को रखना चाहिए टीम में जो कि रेगुलरली आपस में झगड़ा करें बट फिर भी रिश्ता नहीं खत्म हो. तो चाहे उसमें जो पहले बोला आई थिंक अमन ने या किसी ने कि परिवार वालों से या दोस्तों से नहीं रखना चाहिए. तो परिवार वालों को रखने में कोई दिक्कत नहीं है, दोस्तों से भी स्टार्टअप करने में कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज कि रिलेशनशिप उस लेवल का है कि आप लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ली कर सकते हो, शाउट कर सकते हो, बट फिर भी रिलेशनशिप नहीं खत्म होगी. क्योंकि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी आप सुनो, जितने बड़े बड़े कंपनीज हैं उनके भी जो फाउंडर्स हैं स्टार्टअप वर्ल्ड में, तो काफी उनके बीच में हॉट डिस्कशन होता है, बहुत आर्गुमेंट होता है. क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो भी है थोड़ा इंडिपेंडेंट माइंडेड है, कुछ अपना उसका अपना अलग थॉट है, दुनिया में जो चल रहा है उससे हैप्पी नहीं है, ही वांट्स टू चेंज समथिंग एल्स कि दुनिया ऐसे नहीं, ऐसे चलना चाहिए. तो एंटरप्रेन्योरशिप बाय नेचर इटसेल्फ कि आप चीजों को डिस्टर्ब करना चाहते हो, सीधी लाइन पे नहीं आप चल रहे हो, एक नया रास्ता ही बनाना चाहते हो. तो इसलिए आपको ऐसे लोगों को टीम में जोड़ना चाहिए जो कि इस तरह के माइंडसेट के लोग हों, और वैल्यूज मिलना चाहिए थोड़ा बहुत. वैल्यूज इन द सेंस कि आपका वैल्यू कुछ और है और एंटरप्रेन्योर आपकी जो को फाउंडर का वैल्यू कुछ और है, तो सूनर और लेटर प्रॉब्लम होगा. एक कहावत है बहुत फेमस, बोल रहा हूँ, HBR कहीं का था, एक कल्चर ईट स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट, और अभी तो किसी ने बोला कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों के लिए कि कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कल्चरल फिट नहीं है आप लोग का, तो आपके बाकी सारी चीजें वर्कआउट नहीं होंगे और प्रॉब्लम होगा. और कल्चर से आई डोंट मीन कि आप दोनों को सेम लैंग्वेज, सेम म्यूजिक, सेम फिल्में पसंद हो. अलग अलग वो सारी चीजें अलग अलग हो सकती हैं, फूड हैबिट्स, म्यूजिक, फिल्म सारे अलग हो, पॉलिटिशियन भी अलग अलग हो सकते हैं. लेकिन कल्चर से मतलब है कि वो वैल्यूज कि कस्टमर के प्रति ऑब्सेस्ड हैं आप, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रति ऑब्सेस्ड हैं, कि नहीं पैसा किसी का वैल्यू है कि नहीं मुझे पैसा कमाना है, जितना जल्दी जितना ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, तो वो एक वैल्यू होता है. किसी और नहीं, मुझे कस्टमर को खुश रखना है किसी भी तरह से, उसके लिए मैं घाटा भी सहूंगा. तो ये बेसिक जो, और दूसरे कुछ लोगों के लिए होता है कि कुछ भी हो जाए मैं पैसे का हेरा फेरी न करूंगा न करने दूंगा. तो इस तरह के जो बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज है ना, वो अगर को फाउंडर्स के बीच में नहीं मैच करेगा तो सूनर और लेटर बहुत कॉन्फ्लिक्ट होगा. तो वो थोड़ा टाइम लेना चाहिए को फाउंडर बनाने में. और उसके बाद आप जिसको अच्छे से जानते हो, चाहे वो आपका फैमिली दोस्त हो या आपका आप पहली मीटिंग में हो सकता है कि आपको पता चल गया ये तो एकदम बिल्कुल अपने जैसा है, मतलब कि अपने कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उस पे टाइम देना चाहिए. और वही है कि अगर आप बड़े लेवल पे बन गए हो तो फिर नए लोगों को लाने के लिए आपको थोड़ा और ज्यादा लोगों से मिलवाना चाहिए, अपने टीम से मिलवाना चाहिए. द फाउंडर और द CEO दे शुड नॉट हायर,
बट पूरी टीम का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए हायरिंग में, मल्टीपल 4-5 लोगों से, सो दैट कि वो भी आपके स्टार्टअप को अच्छे समझे और स्टार्टअप वाले भी मल्टीपल पर्सपेक्टिव से समझ ले। ये नहीं कि फर्स्ट मीटिंग में मिल गए और प्यार हो गया और बाद में कुछ दिन बाद डाइवोर्स हो गया। तो पूरे परिवार वालों से, स्टार्टअप जो आपकी फैमिली है ना, उस फैमिली से भी आप टू द एक्सटेंट पॉसिबल अपने को फाउंडर्स को मिलवा दो तो अच्छा रहेगा। दैट्स ऑल। Okay. Nandan, are you? अच्छा, कार्तिक है, yes, कार्तिक है, please. So I have a question. एक तो मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो I don't know where exactly is this thing heading. But for Mr. Saurabh and Atul ji, तो मैं ज़्यादा casteism में नहीं मानता, but I do believe in something called as caste traits. तो do you guys think कि while hiring people, आपको you should consider the caste of that person? Saurabh, what do you think? Unmute करना होगा। कास्ट का मतलब आर यू रेफरिंग रिलीजन और शेड्यूल कास्ट और वो जनरल कास्ट, उस टाइप की बात कर रहे हो? मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। Be it anything. तो जैसे मैं अपनी फैक्ट्री के बारे में आपको बताऊं तो this is again something जो थोड़ा बहुत मैं फेस करता हूँ। So मेरे 2 मेन एम्प्लॉयज हैं। One of them is he's a Rajput and another one he's a Bishnoi. तो इन दोनों की आपस में कभी भी नहीं बनती है। तो फायदे नुकसान सब हैं। तो in anything, मतलब be it the casteism, religion वाला या SC ST वाला, anything. I mean, कहीं ना कहीं since your ancestry is from that particular segment, तो you do adopt a lot of traits. मुझे वो ये चीज बहुत genuinely लगती है। तो कहीं ना कहीं तो आप लोगों के बिजनेस में पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट फर्क पड़ता ही होगा इस चीज का। मैं अगर क्लियर देखो की बात करूं तो हमारे पास मुस्लिम स्टाफ बहुत सारे हैं, हिंदू स्टाफ बहुत सारे, मतलब आई थिंक 40% मुस्लिम होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 60 और हिंदू हैं, आई एम श्योर दूसरे कास्ट भी होंगे और रिलीजन होंगे। तो हमने कभी, मतलब मैंने पर्टिकुलरली एज द ओनर ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, मैंने कभी कास्ट और रिलीजन ये सब को नहीं देखा व्हेन आई वाज हायरिंग। तो दिस इज माय आंसर। हाँ तो सर आपको भी कुछ बोलना है इस पे? बिल्कुल। तो एंटरप्रेन्योरशिप इटसेल्फ इज अ कास्ट और रिलीजन। उसके बाद आप बाकी सारे वो जो कास्ट हैं कि कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन दलित और कौन ब्राह्मण, ये बहुत ही इररिलेवेंट चीजें हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए। जैसे सौरभ ने ही बोला कि जब हायरिंग डिसीजन लेते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि सामने वाले का कास्ट क्या है या रिलीजन क्या है, इवन नेशनैलिटी क्या है। एट द एंड ऑफ इट वो उस इंसान को उसके फिटमेंट के हिसाब से हायर कर रहे हैं। और जो पहले मैंने बोला कि कल्चर और वैल्यूज मैच करने चाहिए, कास्ट मैच नहीं करना। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा कि कुछ कास्ट और कम्युनिटीज में एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा चलती है, क्योंकि उनमें एंटरप्रेन्योरशिप को सालों से हिस्ट्री रहा है। जैसे कि भारत में देखिए तो जो आप क्या बोलते हैं वैश्य कास्ट या जो बनिया जो है ना, तो बाय नेचुरल बाय फैमिली इटसेल्फ उनका जो ट्रेडिशन रहा है कि बिजनेस को लोग वैल्यू करते हैं और नौकरी से ज्यादा फैमिली में या सोसाइटी में, तो उस कम्युनिटी में थोड़ा ज्यादा चांस है। या जैन्स के बीच में या सरदार्स के बीच में, मारवाड़ी, कुछ कम्युनिटीज में एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा रग-रग में बसा हुआ, खून में बसा हुआ है। तो उस कम्युनिटी के लोग एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा करते हैं, बिजनेस फ्रेंडली होते हैं। बट दैट डजंट मीन कि कोई राजपूत है या ब्राह्मण है या दलित है तो वो नहीं करेगा। बहुत बड़े बड़े हर कम्युनिटी के लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप किया। तो आपको अपना मैच करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी, आपकी जो टीम और जिसको आप जोड़ना चाह रहे हो एज अ पार्टनर, को फाउंडर, तो आपस में कितना वेवलेंथ मिल रहा है। और वेवलेंथ सेम सोच नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत वैल्यूज मिलने चाहिए, इन द सेंस कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप एंटरप्रेन्योर, आपका विजन है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी बनाना चाहता हूँ, जैसे जब मैं दुनिया की सबसे बड़ी चश्मा कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो दैट कुड बी वन। किसी का नहीं, मैं दुनिया का सबसे चीपेस्ट चश्मा कंपनी बनाना चाहता हूँ। तो किसी का वैल्यू हो सकता है कि नहीं, मैं सबसे हाई क्वालिटी का बनाना चाहता हूँ। तो अलग अलग ये हो सकते हैं। तो वो डिस्कशंस को फाउंडर्स को स्टार्टिंग में कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर एट टॉप लेवल अलाइनमेंट है तब साथ में शादी करनी चाहिए। मतलब को फाउंडर एक लिटरली शादी है, तो शादी की तरह झगड़ा भी होगा और काफी प्यार भी रहेगा।
मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि मुझे जस्ट अभी याद आया, याद क्या आया, सो मेरा जो मैं कायस्थ हूँ बिहार से, मेरा जो पार्टनर है वो जाट है, मेरा जो डिपार्टमेंट एक है एनएसओ दैट हेड्स बाय जैन, मेरा जो वेयर हाउस है दैट इज हेड बाय मुस्लिम, मेरा जो बैकएंड रिकंसिलिएशन है पूरा बैकएंड दैट इज हेड बाय बनिया, मेरा जो होम सर्विसेज है दैट इज हेड बाय राजपूत, और और मेरा जो एचआर है दैट्स हेड बाय अ गर्ल, और मेरा जो टेक है दैट इज हेड बाय अ यंग बॉय हु इज डूइंग बीटेक। तो बहुत डाइवर्स कल्चर है, अच्छा है, एक्साइटिंग। कभी Sure. सोचा नहीं था मैंने ये, तो थैंक्स फॉर द क्वेश्चन। नहीं ठीक है, तो ये एटलीस्ट ये समझ में आया ना कि डाइवर्सिफाइड है एटलीस्ट। सो यस कार्तिकेय, यू हैव फॉलो अप क्वेश्चन और समथिंग? नहीं, मैं वही चीज कह रहा था। तो आई मीन आई फ्रैंकली मुझे मेरे क्वेश्चन का एग्जैक्टली आंसर नहीं मिला, बट आई वुड रियली रिक्वेस्ट आप दोनों से कि जस्ट थिंक ऑफ इट, बिकॉज मुझे ये चीज बहुत लगती है, एज मिस्टर अतुल सेड कि एंटरप्रेन्योरशिप में ये चीज इररिलेवेंट है। तो आई वुड विद वेरी मिनिमल एक्सपीरियंस जो मुझे है थोड़ा बहुत अपनी फैक्ट्री का, आई थिंक ये इररिलेवेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, एटलीस्ट in a very small city like Jodhpur. तो you know, like when I was hiring this fellow, तो this Rajput fellow हमारे साथ बहुत सालों से है, तो इन दोनों की एज अ सेड कि आपस में बनती नहीं है। तो ये चीज कहीं ना कहीं मैं थोड़ी बहुत विजुअलाइज कर रहा था, जस्ट बिकॉज यू नो द काइंड ऑफ कम्युनिटी दे बिलोंग टू। आप उनकी एंसेस्ट्री देखो तो उनकी बनती नहीं है। सो आई बिलीव कि थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं मैंने आई स्टार्टेड विद वन थिंग कि मैं कास्टिज्म में नहीं मानता इतना, बट ये कहीं ना कहीं ट्रेड्स आपके अंदर आ जाते हैं विच आई थिंक यू शुड कंसिडर। तो I would really like a follow up answer आप लोग, if you can just think of it थोड़ा सा और, it's my humble request. आई थिंक इसमें एक चीज मैं ऐड थोड़ा सा कर देता हूँ। आई गेस ये थोड़ा पास्ट एक्सपीरियंस से भी ड्रिवन हो जाता है। सो इफ पास्ट एक्सपीरियंस इज यू नो skewed towards some groups, let's say some caste या religion, और उनके साथ अगर एक्सपीरियंस खराब हो गया तो somehow I mean humans tend to generalize it very fast, ये लोग ऐसे ही होते हैं या जो भी है। But having said that, I guess some trend can follow in certain cities or certain I mean जितने बड़ा सिटी होगा I guess metros में कम होगा थोड़ा, छोटे cities में शायद ज्यादा हो जाए, like because areas might be dominated. Can you hear me? Yeah. So I guess yeah. Any Anjan, do you have any comment on this? Yeah, like what's your take? Yeah, पहला 15-20 आवाज के लिए गई विशाल। अच्छा कि नहीं आ रही अंजन? हाँ, एक मिनट। नहीं, आपको ही बोलना है अंजन। विशाल सुनो, आगे कुछ सुनाई नहीं दिया, तुम्हारी आवाज कट रही है। अंजन अच्छा ओके। ये जो पिछला बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा बेस्ड ऑन की कास्ट एंड रिलीजन, यू नो ये सब पर्सनली मैं इस पे बिलीव ज्यादा करता नहीं हूँ कि, बट हाँ एक चीज है कि the culture defines, you know, culture and upbringing defines आपका mindset, आपका thought process कैसे होता है थोड़ा बहुत। Now speakers, ये एक बात तो समझ में आई कि अगर आपको co-founder चाहिए, आपको इसके साथ ही है तो probably that's a recipe for disaster. So you would rather not, or it can be because of anything, you know, अगर आपके दिमाग में वो डाउट है या if आपको लगता है कि you cannot deal with this guy in the worst of your day, probably you should not be with that guy in the beginning of the journey.
So that's my take. Now अब इस टॉपिक की जो बात थी कि how do you decide on the initial team members? So I am probably 8 months into my venture. पार्टनरशिप हमें 2 बंदों से चालू की है, हमने रिटेल एनालिटिक्स पे चालू की। 2 बंदे हम हैं, मैं रिटेल का हूँ, दूसरा बंदा एनालिटिक्स का है। मैं रिटेल बैकग्राउंड से आया हूँ, मेरा पार्टनर जो है वो टेक्निकल बैकग्राउंड से आया है। सो दैट्स व्हाई वी ट्राई टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अब जहाँ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करने वाली बात है, आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट मेसी कॉन्सेप्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। सारा काम होना चाहिए, बट देयर शुड नॉट बी अ ओवरलैप। दैट्स द इनिशियल थॉट। मतलब ग्रेजुअली एज कंपनी इवॉल्व्स, रोल्स इवॉल्व, बिजनेस इवॉल्व, तो थोड़ा बहुत ओवरलैप हो जाता है, बट यू नो कि ये काम इस बंदे की कोर कॉम्पिटेंसी है। अब जैसे करंट फर्म में करंट स्ट्रक्चर, मतलब ठीक है, वेरी ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर हो जाता है। मैं आधा एडमिन काम देखता हूँ, आई मैनेज लॉट ऑफ द मैन पावर वर्क, आई मैनेज लॉट ऑफ द कंप्लायंस वर्क, आई मैनेज अ लॉट ऑफ अब सेल्स मार्केटिंग तो हर किसी को करना है, तो मतलब फाउंडिंग टीम में तो हर कोई सेल्समैन है, तो उसमें तो दैट्स नॉट समथिंग दैट इज टू बी सेग्रीगेटेड। बट थिंग्स वेयर एक्सपर्टीज लाइज इन, जैसे अगर मुझे रिटेल ज्यादा समझ में आती है तो कंज्यूमर इंटरफेस और रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग, सॉल्यूशन डिजाइनिंग, वो मैं बेटर कर सकता हूँ। मेरा पार्टनर टेक्निकल बंदा है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा समझ में आता है, उसको टेक्निकल टीम हैंडल करना ज्यादा समझ में आता है। सो आई थिंक दैट्स हाउ वी ट्राई टू स्प्लिट आवर वर्क। बट हाँ, अब 8 महीने हो गए, 1 साल होने आया है, एंड देन आगे की टीम ऑब्वियसली it will come to a stage जहाँ it becomes too much for one person to handle multiple responsibilities. So in that way probably you start filling in the support function. जैसे मुझे पता है मुझे कोई चाहिए जो मेरे लिए मार्केटिंग का थोड़ा बहुत काम करे, जो मेरे लिए सोशल मीडिया एंगेजमेंट करे। while we do it, I need a support structure there. I know I need someone who will help me with some bit of administrative work, compliance वगैरह की चीजें और ये सब चीजें, वो those are, you know, I try to probably distance myself from the non-core activities जो भी मैं कर रहा हूँ, तो उसके लिए लोग चाहिए। बट इन सब करने के लिए भी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे चाहिए होगी इज डिपेंडेबिलिटी। यार इस बंदे पे मैं डिपेंडेंट रह सकता हूँ, इसके साथ मैं काम कर सकता हूँ। आई शुड नॉट बी एबल, अगर मैंने इस बंदे को बोल दिया, इसको एडिक्वेटली कॉम्पिटेंट बना दिया है या पहले से मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो भी मुझे तो आता ही है, मैं तो अभी तक कर ही रहा था, मैं इसको सिखा सकता हूँ। तो इस बंदे को सिखा के ऐसा कर सकूं कि मुझे अगले 2-3 साल या 5 साल तक इसके बारे में सोचने की जरूरत ना पड़े, ये बंदा कर ले वो काम। सो आई नीड दैट प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। तो डिपेंडेबिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंदे को दे दिया काम, कर पाए ये। So I think that's one thing that you would look, but again, it's very tough to find those kind of people. And one way that I think ये आप कर सकते हो, अगर आप tried and tested way यार interns रखो, कोई अच्छा बंदा है जिसका who shows these skill sets, who जिनके साथ आप sync होते हो, people who show tendency to be dependable, you hire them and try to build that as a part of the core team. I think that would be my philosophy for hiring. Initial partner, how? यार I think ये मैंने ना I think पिछले I think last week के किसी से में कहा था कि वो जैक फिश को गया था मैंने. There are 2 people you try to look to work with. One, बंदा कर सकता है कि नहीं, दूसरा बंदे के साथ आप ये काम कर सकते हो कि नहीं. अब बंदा कर सकता है कि नहीं वो तो कॉम्पिटेंसी बहुत सारे उसमें तो दैट्स अ लिटिल मोर ऑब्जेक्टिव थिंग, तो वो इवैल्यूएट करना आसान है. दूसरा पार्ट कि आप उस बंदे के साथ काम कर सकते हो कि नहीं, दैट्स अ मोर डिफिकल्ट पार्ट. सो इन दिस केस थोड़ी कॉमनैलिटी ढूंढनी पड़ती है, थोड़ी कल्चरल फिटमेंट ढूंढनी पड़ती है, थोड़ी सम बिट ऑफ कॉमनैलिटी यू हैव टू फाइंड, सम बिट ऑफ सिंक यू हैव टू फाइंड. तो बड़ा इजी उसके लिए भी मेरा बेंचमार्क मेरे पास था कि चलो ठीक है, ये मेरा IIM लखनऊ का एलुमनाई था, तो एटलीस्ट वी हैव सम बिट ऑफ कॉमनैलिटी देयर एंड वी नो कि चलो ठीक है, कॉमन स्ट्रक्चर है, कॉमन पेडिग्री है, एटलीस्ट आई नो कि चलो उस बंदे का थॉट प्रोसेस मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा बहुत मैच कर ही जाएगा. एंड अदर देन दैट आई थिंक इट्स सिंस हमने अपना काम इस तरह से डिवाइड कर रखा है कि ओवरलैप है नहीं, वी ओन बोथ हैव ओन आवर कॉम्पिटेंसीज, तो अगर थॉट प्रोसेस सेम है, फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज अपना अपना एरिया देख रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ गुड मैच. नहीं ठीक है, इस पे और थोड़ा डिटेल क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि वी सी दिस हैपनिंग अ लॉट एक्चुअली, पीपल द इनिशियल
2-3 people usually share the same college or जैसे कि अभिषेक ने बताया बचपन की दोस्ती blah blah and probably जो दोस्ती भी होगी हो ना सेम लाइक पड़ोसी होगा ऑलमोस्ट जिसके साथ रात दिन उठना बैठना होगा. ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो शायद मतलब दूर के लोग को, दूर के रिश्तेदार सेम कॉलेज के भी होंगे तो उनको बनाएंगे अपने टीममेट्स इनिशियल लेवल पे एटलीस्ट. सो इसका प्लस भी है, इसका माइनस भी है. आई गेस I think we can I mean discuss this more on this. तो I think Anjan, let's come to you later a bit. बाकी लोग से थोड़ा बात करते हैं. I'll just Okay, you want to answer? Okay. नहीं तो अपने context में नहीं सिर्फ answer in a general context as well, क्योंकि something can work for you, but will it work for others also? That's the question. I'll give both the context. So मेरा जो partner है मुझसे 8 साल बड़ा है. मैं 2009 में पास आउट हुआ, वो 2001 में पास आउट हुआ है. So there is a substantial. So technically he's a stranger to me. Other than that I know कि चलो ये एक दो चीज कॉमन है, but other than that he's a stranger to me. तो ठीक है, ये मेरा कॉन्टेक्स्ट हो गया. Now other thing is कि जब देखो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में this is my first venture, so I don't have any experience. और अगर मैं जनरली भी बताऊं कि किसी बंदे के साथ अगर आपका पहला एक कॉन्टेक्स्ट में कुछ रिलेशनशिप रहा है, you never know how it's going to turn up in a business context. ठीक है, it can be positive, it can be negative. अब चीज ये होनी चाहिए कि मतलब there has to be some bit of modularity मैं बोलूंगा कि यार if things go far here, business relation may be good, may be bad. अगर ये bad हो भी जाए, it should not affect your personal life or so you can just it should be modular. नहीं चला, okay, this is done, let's move on. So you should have that comfort of moving on. वहीं जहाँ आपकी क्लोज फ्रेंड हो जाता है या फैमिली हो जाता है, दिस exit mode sometimes becomes very difficult. So I think this is one of the reasons. मैं personally I would not prefer to कहने की बात है कि यार इतनी इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए कि काम अपनी जगह, पर्सनल लाइफ होनी है, बट it's not a 0 to 1 scale. It's a whole in between thing है. Not only you, सामने वाले के भी है. चलो ठीक है, I think I should shut up now. ठीक. तो let me just give a perspective to what Anjan said. Yeah, try to explain this a bit better. कि क्या होता है, क्या हो सकता है. As in, I think अभिषेक ने थोड़ा हिंट भी दिया, I guess अभिषेक जनता ने इस पे. He didn't tell in great detail, I guess. And this can vary from person to person. So what I was getting at is कि दोस्ती है, अच्छा दोस्ती है, सब कुछ है. अब आपने उसको बिजनेस पार्टनर बना लिया एंड समहाउ थिंग्स डिडंट वर्क. सो ऑल्दो लाइक अंजन ने कहा कि यू कैन डिवाइड योर वर्क, तुम ये करो, मैं ये करता हूँ, देयर इज नो ओवरलैप. बट इवन इफ द वर्क डजंट हैव एन ओवरलैप, यू कैन स्टिल डू एन असेसमेंट ऑफ द पर्सन कि उसके जिम्मे में जो काम था, व्हाटएवर ही और शी वाज सपोज्ड टू डू, इज डन और नॉट. एंड देयर इज अ हाई चांस दैट दोनों का एनर्जी लेवल सेम नहीं होगा, क्योंकि दो भाई जब एक बराबर नहीं हुए तो दो डिफरेंट डीएनए एक बराबर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता. सो ये एक्सेप्ट है, बट लॉट ऑफ पीपल डोंट एक्सेप्ट दिस. इवन इन मैरिज ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. लॉट ऑफ पीपल से कि मुझे अपने जैसा चाहिए, अपने जैसा चाहिए. अपने जैसा तुम्हारा भाई नहीं हुआ तो अनजान इंसान से क्या उम्मीद है? So just to understand, so now what can happen is some people might be a bit mature. I mean 0-1 नहीं है, there is always a gray area. कोई थोड़ा 1 के ज्यादा होगा, कोई थोड़ा 0 के साइड ज्यादा इंक्लाइंड होगा, 50-50 नहीं होगा या जो भी होगा. So what will happen is कि अगर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होना, सब कुछ अच्छा चला तो अच्छा चला, not a problem, because you already knew each other and then everything is going fine, ये वो blah blah blah, everything is fine. अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो जो बचपन की दोस्ती थी वो सौदागर सिनेमा जैसा, जय जो क्या नाम था, जो भी दिलीप कुमार और राजकुमार वाला स्टोरी बन जाएगा. अभिषेक जनता, व्हाट डू यू थिंक? पहले तो हम कार्तिकेय सर के आंसर देना चाहेंगे कि वो कास्ट और रिलीजन को लेकर बोल रहे थे, तो मोर देन 90% लोग देखते हैं आज के स्टार्टअप में. मैं खुद देखता हूँ, मतलब कास्टिज्म नहीं देखते हैं पर थोड़ा बहुत रिलीजन देखते हैं. इसका एक रीजन है, ऐसा नहीं कि हम दूसरे से नफरत करते हैं, करते भी होंगे तो वो अपने जगह पर है.
लेकिन आपके अंदर में चल रहा है कि दूसरे रिलीजन के खिलाफ वो खराब होते हैं, ठीक है। अब आप उनको अपना एज ए एम्प्लॉय रख लिए, बी प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा भी कुछ एक गलती होता है ना, तो डायरेक्ट आपका माइंडसेट उसके ऊपर जाएगा कि अरे ये सब का तो वही आदत ही होता है, वो वही क्या होगा। तो इससे क्या होगा, दोनों का रिश्ता और एक खराब होगा और एक बदनाम में होगा। उससे अच्छा रकबे मत करो, ठीक है, वो बेटर वे है। अगर आप ये सब फील्ड में है तो, और आपको मतलब किसी चीज से मतलब नहीं है, क्या रिलीजन क्या कास्ट कुछ भी नहीं, तब आप फ्रीली रख सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत भी ये सब चीज में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे हम खुद रहते हैं ये सब चीज में इन्वॉल्व, तो हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। कास्टिज्म को लेकर भी हम थोड़ा बहुत अप्लाई करते हैं, क्योंकि मेरे जो भी एम्प्लॉय है, एक ग्रुप चलता है बिहार में, शायद अतुल सर जानते होंगे, भू मंत्रा करके, उसमें लाखों लोग हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम अपना एम्प्लॉय हम वहीं से हायर किए थे, वो भू मंत्रा। ऐसा नहीं है कि मतलब अदर कम्युनिटी के लोग नहीं है, लेकिन उससे बेनिफिट क्या होता है कि एक माइंडसेट सेम होता है। गलती से भी आपके मुंह से कुछ वर्ड निकल गया तो हाँ, इतना करके समझा देते हैं लोग कि अरे भाई हम लोग तो अपना आदमी है, अपने आदमी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस काम को बेनिफिट भी मिलता है और थोड़ा बहुत सुकून भी मिलता है, क्योंकि हम दे के अंदर एक कुछ छुपाना नहीं चाहते। थोड़ा बहुत मतलब हम क्या बोलते हैं, रिलीजन को लेकर हम एक करते हैं, इसलिए हम हायर नहीं करते हैं अदरवाइज। दोस्त वाला, बचपन का दोस्त, सौदागर। नहीं दोस्त दुनिया में दोस्त कोई नहीं होता है, सिर्फ कृष्ण और सुदामा के अलावा कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। हर लोग मतलब ही है, काम का यार है। मतलब क्या यार। एग्जैक्टली हम तो मानते हैं कि आपका बाप भी नहीं है। मेरा एग्जांपल देते हैं, नहीं इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है मेरे ऊपर। हम जब जेई का प्रिपरेशन करते थे तो मेरे पापा डेली अनार केला जो भी फल होता है ला कर देते थे कि मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है तो इसका आईआईटी निकल जाएगा। उनको लगता था जिस दिन रिजल्ट नहीं आया उसके बाद से हर चीज बंद हो गया, यानी निकम्मा होगा। तो जब तक दूसरों को रियल चीज, दूसरों को आपके अंदर कुछ दिखता नहीं ना है, यहाँ तक कि आपका बाप भी नहीं पूछने वाला है। रियलिटी 1% को छोड़ के 99% का बाप नहीं पूछने वाला है बिहार में, तो खास करके। यस सौरभ, हाँ यू हैव कमेंट प्लीज। सौरभ प्लीज। ओके, तो मैं अभिषेक के दोनों पॉइंट से डिसएग्री करता हूँ। एक तो लास्ट वाला, बाप नहीं पूछने, 99% बाप पूछने नहीं वाला है। बहुत ये जनरलाइज स्टेटमेंट देते हैं अभिषेक, तो नंबर ज्यादा बोलता है, एग्जैजरेटेड बोलेंगे, एग्जैजरेटेड नंबर होता है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पापा ने आपको कोई चीज नहीं दिया तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा, वो आपको समझना है। या जब वो दे रहे थे तब क्यों दे रहे थे, और जब नहीं दे रहे हैं तब क्यों नहीं दे रहे हैं। आई एम श्योर कोई कारण होगा। ऐसा नहीं है कि आप फेल हो गए तो बाप प्यार करना कम कर देगा या माँ प्यार करना कम कर देगी, ऐसा नहीं होता है। सौरभ सर, आप भी शायद एज ए फादर हैं, आज आप ही बतला दीजिए उसका रीजन क्या हो सकता है, ताकि हमको भी सुकून मिले कि उसका आंसर मिल जाए। आपका आपकी भलाई या खाना बंद करने से किसका भलाई होता है जी? अच्छा, खाना बंद कर दिया क्या? मतलब खाना बंद इन द सेंस की जो होता है ना, पहले बार देखिए ये सब है ना, काजू किशमिश बंद हो गया। मतलब बाप भी अमरीश पुरी होते हैं, ऐसा नहीं है। वो होना पड़ता है ना, वो होना पड़ता है। हिरण्यकशिपु था ना, हिरण्यकशिपु प्रहलाद। वो तो हम अभी तक बने हैं नहीं, शायद बनेंगे तो मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस आएगा, अभी तक तो नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट
जो अभिषेक का था, ये जो रिलीजन पे बोला कि ये थोड़ा सा रिलीजन और कास्ट की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। मेरा इसमें बस इतना कहना है कि यार अगर आपको कुछ बड़ा करना है, ग्लोबल स्केल पे करना है या नेशनल स्केल पे करना है, तो आप ये सब सोचोगे तो कभी नेशनल स्केल पे पहुंच ही नहीं पाओगे। तो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल हु इज रनिंग द और हु इज हेडिंग द ऑर्गेनाइजेशन। वो जो कल्चर बिल्ड करेगा ना, वही नीचे परकुलेट करेगा। अगर आप ये सोचोगे यार कि ये सामने वाला बंदा का तो जाति ऐसा है तो वो तो करेगा ही है, इसको तो पूरी जाति खराब है तो वो भी खराब कर रहा है, ये सब थॉट हमारे माइंड में नहीं आता। अगर अगर हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉय गड़बड़ करता है तो, अगर वो गड़बड़ करता है तो ही गेट्स पीनलाइज्ड फॉर इट और ही गेट्स अ थ्रैशिंग फ्रॉम मी। और गड़बड़ जब कुछ अच्छा काम करता है, ही गेट्स अप्रिशिएटेड irrespective of caste and this and that. Yes, Neeraj, you want to say something, and then Sejal can add. Yes. सर काफी देर से कास्ट और रिलीजन पे बात चल रही है, मैं थोड़ा सा इसमें एक एंगल दूंगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कई बार आउटसाइडर फील करता हूँ बिकॉज ऑफ रीजनलिज्म। कई लोगों के मुंह से बहुत जल्दी निकल जाता है एक बिहारी सब पे भारी, मैं बिहारी तू बिहारी। तो वो वाली चीज भी अगर आप फाउंडर टाइप का कुछ काम कर रहे हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सब चीजें भी थोड़ा सा मेरे को लगता है कि आपको नहीं सोचनी चाहिए, थोड़ा सा ब्रॉडर एंगल होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीयता पहला धर्म है और बाकी चीजें ठीक है, आपके अपने लाइफ के कुछ एजेंडाज हो सकते हैं, लाइफ में कुछ अपनी एम्बिशंस हो सकती हैं जिनके लिए वो चीजें जरूरी हों, लेकिन अगर आप फाउंडर के तरीके से जहाँ पे फाउंडर की हैट पहन के जहाँ बैठे हैं तो वहाँ पे ये वाला एंगल भी नहीं आना चाहिए। Sure, Sejal, please. सर पहले तो मैं अभिषेक सर का वो पापा वाले बात पे कहूंगी कि पेरेंट्स का ये एक ऐसा लव होता है जो अनकंडीशनल होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कास्टिज्म पे मेरा ये मानना है, चलो ठीक है आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो चीज कर सकते हो, इट्स इन योर हैंड, बट जब आप अपने क्लाइंट से डील करोगे तो भी क्या वो आप देखोगे, और अगर आप वो देखोगे तो आपका ग्रोथ का जो पर्सपेक्टिव है वो मेरे हिसाब से कम हो जाएगा। नहीं, इससे हम क्या कहना चाह रहे थे शायद आप लोग नहीं समझ पाए। हम कह रहे हैं कि मेरा ये पर्सनल है कि हम इस सब चीज में स्टार्टिंग से ही ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे कल एज फॉर एग्जांपल राम मंदिर वाला था, कल GDI 10 वाले में भी नहीं आ पाए क्योंकि उसमें इतना ज्यादा मेरा इन्वॉल्वमेंट था कि यहाँ जाना है, यहाँ दिया जलाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरे अंदर एक मेंटालिटी हो गया है, ठीक है। अब मेरे पास दूसरे रिलीजन वाले आते हैं तो उसमें उसका भी भलाई नहीं है कि मेरे दिमाग में चलते रहेगा कि अरे ये सब का गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि जो भी मेरा फ्रेंड सर्कल है स्टार्टिंग से ही रहा है, संघ से जुड़े हुए हैं बचपन से ही, ठीक है। तो मेरा एक मेंटालिटी है यहाँ, ठीक है। तो मतलब ये मेरा एक पर्सनल व्यू है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा जनरल वे में, आई थिंक नॉट टेकिंग एनी साइड्स। सो अभिषेक को छोड़ देते हैं, बट ऐसा बहुत लोगों के साथ होगा जो रिलीजन वाइज डिस्क्रिमिनेट करेंगे, कास्ट वाइज डिस्क्रिमिनेट करेंगे, जेंडर वाइज डिस्क्रिमिनेट करेंगे, इवन क्वालिफिकेशन वाइज भी डिस्क्रिमिनेट करेंगे। देयर विल बी सम वेज टू, नहीं होता है उतना। नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ, हाँ नहीं मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरल बोल रहा हूँ और उसमें भी एक बस और कोई नहीं। हाँ नहीं मैं जनरल बोल रहा हूँ कि आई थिंक lot of people have this way to discriminate or like preference, बोल सकते हैं, favoritism बोल सकते हैं, ठीक है। nepotism का one level up, favoritism, I use favoritism better। yes अतुल सर आप बताइए, favoritism तो है चाहे कितना भी डिनाई करें हम लोग। तो मैं डिस्क्रिमिनेट करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, बट उल्टा डिस्क्रिमिनेट करता हूँ। तो मुझे अगर किसी सेम जॉब के लिए या किसी सेम के लिए दो इक्वली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हो, बट कोई एक पाकिस्तानी लड़की हो या सीरियन लड़की हो
या कोई अफ्रीकन अमेरिकन कोई लड़की हो, स्पेशली लड़की हो या क्रॉस जेंडर हो, तो मैं उसको प्रेफर करूंगा, पब्लिकली करूंगा, बिना किसी शर्म के करूंगा। तो मैंने बहुत एक नया सेगमेंट भी डिफाइन किया कि बहुत सारे बायसेस को कवर करता है, मुस्लिम हो, लड़की हो, पाकिस्तानी हो या सीरियन हो, अफ्रीकन हो, तो कोई अफ्रीकन या पाकिस्तानी कोई मुस्लिम हो तो मैं उसको प्रेफर करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वो एक डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि नॉर्मली मेरे कम्युनिटी में, मेरे सर्किल में नहीं है। वो मेरे रिलीजन की नहीं है, मेरे कास्ट की नहीं है, मेरे कंट्री की नहीं है, तो वो मेरे लिए डायमंड है। मेरे कास्ट का, मेरे रिलीजन का, वो तो मेरे साथ बाएं दाएं ज्यादातर लोग, मेरे एक दोस्त ने ये बात पूछा था, मेरी वाइफ ने एक बात पूछा था कि तुम्हारे ज्यादातर सारे तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं जो स्कूल के, तुम लोग सब इसी एक कास्ट के क्यों हो? तो मैंने बोला कि ऐसा नहीं कि हमने बाय कास्ट पे सिलेक्शन किया, इट हैपेंड कि उस कास्ट के काफी लोग वहाँ पे जिस गांव से आए थे बिहार के, तो वहाँ सैनिक स्कूल नेतरहाट की कोचिंग चलती थी, तो उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से सब आए, तो उस कास्ट के ज्यादा लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो ज्यादा लोग आ गए। बट ऐसा नहीं कि कोई कॉन्शियस एफर्ट मैंने कहा कि उसी कास्ट के लोगों से मुझे दोस्ती करनी, ये करना है। तो पॉइंट इज कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, और बहुत सारी बड़ी कंपनीज भी कर रही हैं। बहुत बड़ी बड़ी जो ग्लोबल कंपनीज है, अगेन गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, उनकी पॉलिसीज होती है, कंपनी की पॉलिसीज कि उनको जो इस तरह की कम्युनिटीज जो कि वीकर या अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज को, एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट जो बार बार देता हूँ कि न्यूयॉर्क सिटी में एक बुल का ये स्टैचू बना हुआ है, जो वॉल स्ट्रीट का बुल है, जो रिप्रेजेंट करता है वॉल स्ट्रीट के वैल्यू को, कि बुल है एकदम भैंस की तरह से एकदम ये कर देंगे। वॉल स्ट्रीट को काफी बहुत एग्रेसिव एंड लाउड कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टेट स्ट्रीट एडवाइजर्स है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का फंड मैनेज करते हैं। स्टेट एडवाइजर ने एक पॉलिसी बनाई, उनके बोर्ड मेंबर्स ने पॉलिसी पास की कि हम किसी कंपनी में फंडिंग देंगे नहीं। उनका फंडिंग डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बिलियंस में इन्वेस्ट कर, मतलब कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर फंड है और किसी कंपनी में उनके इन्वेस्ट नहीं करने से बिलियंस ऑफ डॉलर का फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने पॉलिसी बनाई कि हम किसी भी उस कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे जिस कंपनी में 40 या 50% फीमेल मेंबर बोर्ड में मेंबर नहीं हो। मतलब कि बोर्ड पे चाहिए, ये नहीं कि कंपनी के एम्प्लॉइज, बोर्ड लेवल पे 40-50% मेंबरशिप चाहिए था। तो ये बहुत बड़ा जो सिग्निफिकेंट स्टेट एडवाइजर्स स्टेट स्ट्रीट ने लिया। आई थिंक स्टार्टअप्स भी ले रही है, बहुत सारी कंपनीज ले रही है, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, सब में पॉलिसी होती है। और हमारा है कि हम राइट फ्रॉम बिगिनिंग कोशिश करते हैं कि हम लोग उस कम्युनिटी के लोगों को रखें अपने कंपनी में। वो डाइवर्सिटी, अफ्रीकन हो बहुत अच्छा हो, लड़की हो और अच्छा है, पाकिस्तानी हो बहुत अच्छा है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है। बट कंपनी, मैं अपनी कंपनी में पॉलिसी इन्फोर्स कर सकता हूँ। किसी पब्लिक कंपनी के लिए बोर्ड के थ्रू, रिव्यू के थ्रू जाएगा तो थोड़ा हार्ड होता है। तो स्टार्टअप से मैं इंकरेज करता हूँ, या यहाँ पे सौरभ है, तो सौरभ के जैसे कंपनी में उन्होंने कोई पॉलिसी पास नहीं की, उनका खुद का पर्सनल ये बिकॉज ऑफ हिज वास्ट एक्सपीरियंस एंड ये है कि सब कॉन्शियसली उनके दिमाग में ये हो रहा होगा कि मैं उस कम्युनिटी के, हर कम्युनिटी के लोगों को अपनी कंपनी में रखूं। डाइवर्सिटी इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ मोस्ट स्टार्टअप कैन हैव। या श्योर, ठीक है, ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा और आई मीन आइडियल केस है, लेट्स से। I think at times it can get to opportunity loss actually. If you are trying to find a very diversified crowd for your initial core team, let's say, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको मिलेंगे ही नहीं उतने लोग उतने कम टाइम में, और आपका टाइम चले जाना शुरू हो जाएगा। उस केस में कहीं ना कहीं that's why favoritism also happen as a necessity, as in you are losing time and all. तो अपना जो सर्कल है, ये है वो है, कहीं ना कहीं आदमी लोग लोग फाउंडर्स क्या करते हैं, उसी से उठा लेते हैं अपना एटलीस्ट कोर टीम की, चलो यहीं से ले लेते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, ये है वो है, तो कहीं ना कहीं वो हो जाता है। तो आई थिंक रवि, मैं उस पे कहना है कि आई एग्री विथ यू कि जब मैं स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ तो सबसे पहला मेरे टीम में कौन होंगे पता है? मेरे परिवार के लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग मेरे लिए फ्री में काम करेंगे। मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वो मेरा होगा, क्योंकि वो मेरे लिए फ्री में काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अतुल कुमार के पास पैसे नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने, मैं बताता हूँ, एक जमशेदपुर की एक लड़की है, अच्छी खासी टाटा में काम करते, टाटा ग्रुप में, तो उसने मुझे वॉलंटियर किया। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे, उसने मुझे वॉलंटियर किया कि अतुल, आई वुड लाइक टू
वर्क फॉर यू फॉर फ्री, मतलब उसकी एक जॉब है अच्छी खासी टाटा ग्रुप में, लेकिन उसने कहा कि मैं आपको टाइम देना चाहूंगा, आपके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टाइप से मैं काम करना चाहूंगी। तो मैंने कहा बिल्कुल। तो उसका काम है कि आपका जो मीटिंग्स होता है, बहुत सारे आप इवेंट्स कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में जाते हो, तो मैं आपके लिए आपका कैलेंडर बना के पिछले दिन रिसर्च करके बना के दे दूंगी। बहुत अच्छी बात है। मैं IIM सोसाइटी का वन ऑफ द को फाउंडर्स हूँ। तो वन ऑफ माय बिगेस्ट रिग्रेट एंड पेन इज कि ज्यादातर हमारे जो 4-5 जो डायरेक्टर्स है, दे आर ऑल गाइज। तो मैंने फीमेल मेंबर्स को, IIM एलुमनी को लाने के लिए बहुत आउट ऑफ द वे जाके कोशिश की, बट इट्स हार्ड, क्योंकि आप जिस सर्कल में उठते बैठते हो वहाँ पे ज्यादा फ्रेंड है, दोस्ती है, तो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली चांसेस है कि आपको स्कूलमेट्स और फैमिली वाले या फ्रेंड्स उनसे डाल लेंगे। बट मेरा पॉइंट ये है कि हमको कॉन्शियस एफर्ट करने की जरूरत है, और आप कितना एफर्ट करते हो उसी पे आपका भरोसा है, रिजल्ट तो आपके हाथ में नहीं है। Sejal, have some comment, please. सर मैं अतुल से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जो अभी उन्होंने बोला कि आई प्रेफर अ पाकिस्तानी एंड ऑल दैट थिंग, तो सर ये भी तो बायस्ड हो गया ना, मतलब तो, इस टॉपिक पे सोचने ही क्यों है? हाँ ठीक है। तो बायस के टॉपिक पे मैंने बहुत बार आर्टिकल शेयर किया है, बट पढ़ता नहीं है कोई। मैंने कहा कि बायस इज ए पार्ट ऑफ all human beings, even human beings, all living beings are biased. The only thing is some are aware of the bias and some are not aware of the bias. Bias को मैं थोड़ा scientific way में explain करता हूँ, Heisenberg uncertainty principle के तौर पे। The very act of measuring subatomic particle में कि spin, top spin क्या है, तो that itself will change the object being measured. तो आप अगर आई नो यार साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, बट आप जो भी साइंस वाले स्टूडेंट हो, दे कैन रियलाइज कि आपने पढ़ा होगा साइंस में रिलेटिविटी थ्योरी या जो क्वांटम में, कि द एक्ट ऑफ मेजरिंग इटसेल्फ चेंजेस थिंग्स। कोई ये बोले कि वो बायस नहीं है, तो मतलब कि उसको पता नहीं है वो बायस है। बायस बहुत तरह की बायसेस होती है, कॉन्शियस बायस, सबकॉन्शियस बायस, अनकॉन्शियस बायस। आई मीन देयर आर different types or 7 types of biases. तो बायस तो सबको होना ही है, क्योंकि हम मान लीजिए कि मुझे लाल रंग पसंद है, आपको सकता है पीला पसंद हो। अब हम लोग कुछ स्टार्टअप के को फाउंडर्स हैं, अब हम लोग को कुछ लोगो डिसाइड करना है, तो मैं बोलूँगा, या हम ऑफिस का पेंटिंग डिसाइड कर, हम लोग को फाउंडर्स हैं, ऑफिस का जो चेयर किस कलर का होगा और आप बस आउटडोर क्या होगा, तो मुझे ब्लू पसंद है तो मैं सब कुछ ब्लू कर दूंगा, आपको लाल पसंद है आप सब कुछ लाल कर दोगे। तो फिर को फाउंडर्स के बीच में आपस में ये डिस्कशन होना चाहिए कि व्हाट मेक्स मोर सेंस, और फिर हम लोग थोड़ा सा डिजाइन और जो एक्सपर्ट है उस पर्सपेक्टिव से डिसीजन लेंगे। तो बायस होना नहीं होना ऑप्शनल नहीं, बायस तो 100% सबके पास होता है, किसी को ज्यादा किसी को कम, और बायस का अवेयरनेस होना जरूरी है। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो मैंने जो पाकिस्तानी और इसका एग्जांपल इसलिए दिया, अभिषेक जी को बहुत पसंद नहीं आया होगा, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक डाइवर्ट हो गया। हाँ, मतलब ये टॉप, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि बायस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नहीं, तो basically अतुल मैं बता रहा हूँ what he is trying to answer. He's just saying that you should be aware of your bias. But I think that is a general thing anyways. अच्छा, Ravi ji wants to add something. Yes, Ravi, please. What do you think? So my point on this, or my take on this, what Saurav and Abhishek mentioned, even Karthik, the question he asked is okay. It has a relevance in today's world also, and it's there in every geography. If you talk about your mic has some disturbance, Ravi. Hello. हाँ अभी ठीक है. Yeah. So every geography has some kind of features, okay, which is very prominent with that particular geography, and this have influence on the recruitment or any employee who is getting commission in any of the company, irrespective of the traits they wants to follow also. So there are few geography which is cross culture. So in cross cultural geography, you will not find casteism or all those things have a role to play. But there are few geography which is more prominent with one of the caste or maybe a caste dominated geography, where these things do include in the recruitment process mindset or that frame itself. To put up in more efficient way, I tell you, see, Mumbai, Delhi are more prominent for the cross culture activity, where the language, geography do not play any role. But if you come to South, though it's already advanced society, but still
the geography, culture, you belongs to which part of play a very vital role in terms of designing the framework for hiring a candidate for a particular position. So it play a role somehow, but not like 100%, but it has like a pinch of contributions towards that hiring process or structuring of the framework for that particular role to be hired on the basis of these few things. Sure. Yeah. So I think अच्छा अभिषेक कुछ बोलना चाहते हो, बताओ. यस 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 हम कहना चाहते हैं कि जहाँ तक बायस का बात चल रहा है, तो बायस एक कौन नहीं है जो मतलब देश को चलाता है, पॉलिटिशियन से लेकर ऑफिसर तक, आईएएस आईपीएस हर लोग बायस हैं. जैसे एज फॉर एग्जांपल बिहार, ठीक है, तो यहाँ पर कास्टिज्म का ज्यादा बायस चलता है कि जैसे नीतीश बाबू है हमारे, तो वो खाली एक कुर्मी को ही रखेंगे, ठीक है. मतलब एम्प्लॉय, जैसे एक बिहार में म्यूजियम बना है, बिहार म्यूजियम का, वहाँ पे एंट्री गेट से लेकर एग्जिट गेट तक जितना एम्प्लॉय है मोर देन 95% उनके जाति का है. उधर आगे बढ़ जाइए, क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में रिलीजन को लेकर है बायसनेस, मुस्लिम हिंदू वहाँ पे होता है. तो हर जगह है. आप भी किसी ऑफिसर के पास मिलने जाइए, अगर ऑफिसर ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण है, तो उसको सोचता है कि अरे मेरे कम्युनिटी का है, इसका मदद करना चाहिए, ठीक है. तो हर जगह बायसनेस है, कोई थोड़ा ज्यादा करता है, कोई एक्सट्रीम लेवल पे करता है, कोई कम करता है. यहाँ तक कि पीएम सीएम जो भी है, हर लोग बायस हैं, हर लोग अपना प्रॉफिट ही देखते हैं. Sure. नहीं तो सही बात है, बायस सभी में लोग हैं. नाउ द क्वेश्चन इज कितना बायसनेस इज गुड फॉर अ स्टार्टअप. तो लाइक सौरव ने कमेंट दिया था कि आप जितना कम बायस होंगे, आपकी कंपनी उतने ज्यादा गो ग्लोबल हो सकती है, राइट? So maybe Neeraj, what do you think about this? I mean, the least bias you are or your company culture is, the more go global you can go. Neeraj, please. सर मुझे लगता है कि टैलेंट सबसे बड़ा बायस होना चाहिए. और एटलीस्ट स्टार्टिंग में काफी लोगों ने बात करी डाइवर्सिटी की, ये होना चाहिए, डाइवर्स होगा तो अच्छा होगा. मेरा इसमें पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनिशियली, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे डाइवर्सिटी आपको परेशान कर सकती है. वहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस मैच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बिल्कुल स्क्रैच से डिफाइन हो रही हैं. और वहाँ पे अगर जैसे शुरुआत हुई थी हमारी उज्जवल के बोलने से, अगर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो आपकी चीजें शायद बनते बनते बिगड़ भी सकती हैं. शायद बन ही ना पाए जो आप बनाना चाह रहे हैं, जो आप मिलके काम करना चाह रहे हैं, वो काम हो ही ना पाए. तो कुछ हद तक, कुछ एक लेवल तक जाने तक आपकी सोच में बहुत मैच होना बहुत जरूरी है. एक तरह के वैल्यूज, एक तरह की फाइनल, मतलब जो आप अलाइनमेंट होनी चाहिए डेस्टिनेशन के लिए, वो बहुत जरूरी है. कुछ समय बाद जब यू आर वेल एस्टेब्लिश, आप स्क्रैच से जो करना था वो कर चुके हैं, देन ब्रिंग ऑन डाइवर्सिटी. फिर आप जो भी मेल फीमेल जो भी आप लाना चाहते हैं, पाकिस्तान से या जो भी, फिर आप लेके आइए, क्योंकि वहां पे फिर वो हेल्प करेगा. मैंने एक बार पहले भी बात की है रोजर्स टेक्नोलॉजी कर्व. तो हर एक स्टेज पे आपको अलग तरीके से डेफिनेशन की जरूरत होती है. पहले 2.5% लोग जो इनोवेटर आएंगे, उनके लिए आपका अलग स्ट्रेटजी रहेगा. फिर आप एक ग्रोथ फेज में जाएंगे, इनिशियल ग्रोथ फेज आएगा. वो सारी चीजें अलग अलग डिफाइन करनी होती है, और उसी हिसाब से आपकी डाइवर्सिटी आपको वहां पे हेल्प करेगी. इनिशियली डाइवर्सिटी कैन डैमेज यू. दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग. श्योर. यस उज्जवल, प्लीज. ये सर बेसिकली जो नीरज सर का पॉइंट था, सही मैं भी बोलने वाला हूँ कि मैंने जितना भी मुझे एक्सपीरियंस रहा है, जितना यहाँ पे जीडी वगैरह पे भी रहा है, कि मैं किसी का सरनेम तो बिल्कुल पूछता ही नहीं हूँ. बस उससे पूछता हूँ लोकेशन क्या है और तुम्हारे अंदर स्किल्स क्या है, और मैं अपने टीम में रख लेता था. और मैं इवन मेल फीमेल है कि नहीं है ये भी नहीं देखता था. और मैं ज्यादा से ज्यादा फीमेल पे प्रेफरेंस ज्यादा देता था, क्योंकि कहीं ना कहीं कंज्यूमर बिहेवियर थोड़ा अट्रैक्टिव होते थे फीमेल से, मैंने नोटिस किया. तो मैं दोनों, और मैंने एक सृष्टि जैन करके थी, तो मैंने उसको कोर टीम में ले लिया जस्ट बिकॉज कि उसके अंदर बहुत ज्यादा स्किल्स थे, तो मैं उसको खूब
बटरिंग करता था, फिर एक दिन बोल दिया कि यार तुम्हारी जरूरत है हमें कोर टीम में और वी नीड यू, तो हम लोग ने उसको ले लिया। तो यही मैं बोलना चाहूंगा, स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए एंटरप्रेन्योर्स को मेरे हिसाब से, और कास्ट तो देखना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, और रिलीजन्स। बायस पे से एक और चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि बायस से केवल आई थिंक कि रिलीजन पे नहीं है, आई थिंक बायस हर एक चीज पे आपका, आप किस रीजन से बिलोंग करते हो, बिहार से, यूपी से, लाइक इंडिया तक भी होता है। लाइक अगर तुलसी के पास वहां जाएगा कोई तो इंडिया को सिर्फ थोड़ा तो लगेगा कि हाँ भाई मेरे पास का है। फिर आपका कल्चर में भी, लाइक आपकी प्रोफेशन में भी होता है कि हाँ ये राइटर है, ये एंटरप्रेन्योर है, ये एक्टर है, तो वहां भी मतलब बायसनेस तो एक इसका दायरा जो है एक चीज में सीमित नहीं है, ये हर एक पार्ट बाय पार्ट आई थिंक बना हुआ है। और स्टार्टिंग में से उसको आपने से कहा लाइक साक्षी श्रृंखला का मैंने उसको ऑफर किया, उसमें तो 3-4 जो चीजें थी वो तो एक फर्स्ट से एक लड़की थी, लाइक मैं और उज्जवल फर्स्ट दोनों लड़के हैं, तो एक आपको फीमेल का भी जो है वो उसको सिक्योरिटी आगे मिले, तो एक उसका वो भी रीजन रहा। दूसरी चीज थी कि वो अलग रीजन से भी आते, लाइक वो हरियाणा से, वी आर फ्रॉम बिहार एंड यूपी, शी इज फ्रॉम डिफरेंट रीजन। तो ये सारी भी चीजें एक माइंड में आया था मेरे कि हाँ ये थोड़ा एक अलग चीज हो सकता है। और मुझे अभी तक लगता है कि उसका मुझे बेनिफिट मिला है अभी तक तो और अमन ने जो एग्जांपल दिया ना, दिस एग्जैक्टली मैं बोल रहा था, अमन ने एग्जांपल दे दिया कि अमन ने जो काम किया, उन्होंने जब अपने टीम बनाई तो एक्स्ट्रा एफर्ट डाला टू हैव साक्षी एंड अदर डाइवर्स टीम, एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप ये नहीं करो कि आप ऑब्वियसली उनके जो फ्रेंड होंगे ज्यादा लड़के होंगे और दोस्त होंगे उन्हीं को, या बिहार यूपी के हैं, लेकिन उन्होंने कॉन्शियस एफर्ट किया कि हरियाणा की है या लड़की है, डाइवर्सिटी हैज मेनी डायमेंशंस। ये जो कॉन्शियस एफर्ट जो है ना, उसी की मैं बात कर रहा था कि दैट इज व्हाट नीड्स टू बी डन बाय स्टार्टअप्स। यस नीरज, यू हैव कमेंट प्लीज। सर बायसिंग की तरफ एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा। ह्यूमन माइंड में बायसिंग इस तरह से बसी हुई है कि आप जिस ग्रुप में होते हैं ना, उसी में फिर आगे डीपर लेवल ऑफ बायसिंग ढूंढना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं अमेरिका गया तो मुझे वहां पे कोई इंडिया से दिख जाता था तो मुझे अपना भाई लगता था, ठीक है। मैं मुंबई गया तो मुझे कोई हरियाणा से दिख जाता तो अपना भाई लगता है, और मैं हिसार में पढ़ता था तो मुझे सोनीपत से कोई अपने डिस्ट्रिक्ट से दिख जाता तो मुझे अपना भाई लगता था। सोनीपत में जब आता हूँ तो मेरे को अपने गाँव के आसपास का तो आप जितना उसमें जाते जाएंगे ना, उतनी और डीपर आप उसमें बायसिंग ढूंढते जाएंगे। ये ह्यूमन बिहेवियर में है। मेरे को अभी नॉर्दर्न इंडिया की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो यहाँ पे कास्ट से ज्यादा यहाँ पे रीजनलिज्म बहुत स्ट्रांग हो गया है कि ये पंजाबी है, ये वो है, तो और इसकी वजह से मतलब एक अलग ही तरीके की बाइसिंग स्टार्ट हो गई है। रीजनलिज्म बहुत दूसरी जगहों पे भी बहुत बढ़ रहा है। तो अब चीजें कास्ट से अलग दूसरे तरीके से भी चलने लगी हैं, तो ये ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने आप के ऊपर काम करके ही इसको खत्म किया जा सकता है। नहीं तो वो कहीं ना कहीं हर जगह आपको एक चीज मिल जाएगी तो आप नेक्स्ट लेवल ऑफ बायस ढूंढना शुरू कर देते हैं। नहीं नीरज, ये तो खत्म ही नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हमारा तो फंडामेंटल ही हिला हुआ है। जब सारे स्टेट्स डिवाइड हो चुके हैं, रिलीजन डिवाइड हो चुके हैं, बचपन से ही घर डिवाइडेड है, घर डिवाइडेड है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई भी टीचिंग से या कोर्स से या कुछ रूल्स लाने से बाइसिंग नहीं होगी या ये सब नहीं होगा, तो इम्पॉसिबल है। नहीं, आपने दूर किया ना बाइसिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। क्या आपने दूर की ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बाइसिंग? जैसे आपने बताया कि 40% क्योंकि मैंने डे वन से किया। हाँ, मैंने डे वन से किया। अब लोग हाँ तो इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से जाके कुछ चीजें चेंज की जा सकती है। मेरे को लगता है कि आप एंटरप्रेन्योर बन के ज्यादा काम कर सकते हैं, जैसे सौरभ ने किया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपकी पॉलिटिकल सोच हो, उस तरह की बैकिंग हो, उस तरह से ही आप कुछ समाज सुधार सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में बहुत बड़ा इसमें सपोर्ट सिस्टम है, आप उस तरीके से भी बहुत सारा अच्छा काम कर सकते हैं। मैं नीरज आपसे थोड़ा सा डिफर करता हूँ, इसलिए डिफर करता हूँ कि पॉलिटिक्स से बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप दुनिया में कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा रिस्क की दुनिया पॉलिटिक्स है, और जितना पॉलिटिक्स के पास जो पावर ऑफ टू चेंज द वर्ल्ड होता है ना, वो किसी के पास नहीं है। तो किसी भी कंट्री का या स्टेट का जो हेड है, उसका जो बजट होता है ना, उस कंट्री के किसी आज दुनिया का सबसे जो रिच एंटरप्रेन्योर है, जेफ बेजोस या बिल गेट्स, उनके पास
फ्रैक्शन भी नहीं है जितना गवर्नमेंट्स के पास पावर टू चेंज द वर्ल्ड है। वो लॉ चेंज कर सकते हैं, पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, एंड उनके पास बजट एलोकेशन कर सकते हैं। किसी भी स्टार्टअप का भी सबसे बड़ा जो फंडिंग आता है वो गवर्नमेंट क्लाइंट। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि सर वो तो है ही है, सर वो तो है ही है, उसको तो हर कोई जानता है, लेकिन मैं एक दूसरा एंगल इसको दे रहा हूँ कि आप एक अच्छा स्टार्टअप करके आप दुनिया की टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हैं, आप सोचने का तरीका चेंज कर सकते हैं, आप गरीब लोगों को वो चश्मा पहना सकते हैं जिसके लिए वो इतने दिनों से भटक रहे थे, आप हायरिंग में बाइसिंग खत्म कर सकते हैं, आप दो धर्म के लोगों को साथ बिठा के काम कर सकते हैं। तो देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम पॉलिटिक्स एज वेल। पॉलिटिक्स तो सबको पता है कि पावर मिलेगी तो आप थप्पड़ मार के काम करा लोगे, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप एक दूसरा रास्ता खोलता है। बिल्कुल, आई एग्री विद दैट। करेक्ट। तो इसको थोड़ा कल और डिस्कस करते हैं। आई थिंक थोड़ा सा और एंगल बच गया है कि एंटरप्रेन्योर का आई गेस वन। एक क्वेश्चन अच्छा अभिषेक, चलो बोल दो। कि मतलब हम अपने माइंड से कैसे हटाएं, जा नहीं हाँ, पाता है क्योंकि यही क्वेश्चन है एक्चुअल, कि अपने माइंड से कैसे हटाए, और या मतलब कब ये हटना चाहिए, कैसे ये लाइक ये दूर हो सकता है या कम हो सकता है एटलीस्ट। हटना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि ठीक है। हमको नहीं लगता है, नहीं एक सेकंड, हम बतला रहे हैं कि ये क्यों नहीं हट पाता है। जो आदमी मंदिर के लिए जाकर एक कोर्ट में केस लड़ रहा था, वही कल बोल रहा था कि नहीं हम कुछ नहीं, हम सब हिंदू मुस्लिम तो वो भाई है। तो ऐसा थोड़ा ना है कि वो पब्लिक बुड़बक होता है, उसको सब समझ में आता है, सही वक्त का बस इंतजार रहता है। तो आई थिंक हटना ये बहुत मुश्किल है। नहीं तो नहीं मुश्किल तो है, लेकिन मिशन इम्पॉसिबल का बात करेंगे आज और लोगों को। मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ, सारा हिट लास्ट में निकलता है। हॉट टॉपिक छेड़ दिया अभिषेक ने। रवि तुम बोलो फिर मैं बोलूंगा। अच्छा, मैं ये बोल रहा था, अभिषेक जो पॉइंट बोल रहा है ना वो वैलिड है, लेकिन अभिषेक उसके पीछे रीजन क्या रहता है ना, मोटिवेशन क्या रहता है। पैसा जब तक आ रहा था तब तक वो लोग अगेंस्ट बोल रहे थे, आज पैसा आना बंद हो गया तो नाउ दे हैव नो चॉइस टू एक्सेप्ट। मतलब ये कहाँ पैसा, समझे नहीं बात को। जैसे मंदिर, जैसे अभी बाबरी मस्जिद का जो केस चल रहा था, तो फंडिंग बहुत ज्यादा आ रहा था ना उन लोगों को, सऊदीया से, पाकिस्तान से, और मतलब नहीं तब शायद आप गलत है। फंडिंग आ रहा था नहीं आ रहा था वो अलग इशू है। राम मंदिर बनने का एक ही इशू है कि क्या बोलते हैं, देश में मोदी, राज में योगी, और जो वहाँ के जज थे वो बेचारे राज्यसभा के मेंबर बन गए और अपना रामराज आ गया। ये रियलिटी है। नहीं ये तो इंटरप्रिटेशन का तरीका है अपना। अपने को खुश करने के लिए इंसान कुछ भी बोलेगा। तो इस साइड का स्टोरी है, मैं मतलब उस साइड का बता कि जो कल तक जो लोग मतलब इसके अगेंस्ट जा रहे थे, या फिर मतलब जो लोग उसी केस को लेके कोर्ट में लड़ रहे हैं, या मतलब वो जो कोर्ट टीम के मेंबर हैं बाबरी मस्जिद के जो कोर्ट में लड़ रहे थे, उनका कल का इन्विटेशन जब गया था तो वो उनका कमेंट सबसे पहले यही था कि हम तो पहले से चाहते कि राम मंदिर वहां पे बने और भव्य बने। अरे वही तो बात हम भी बोल रहे हैं कि उतना दिन से दिमाग पगलाया हुआ था। नहीं तो मैं समझ में उसको। अच्छा ठीक है, इसको अलग टॉपिक में डिस्कस करते हैं। मंदिर का क्या रहता है ना, पीपल से अबाउट इट। अभी तो मैं बोलूंगा कोरोना के चक्कर में तो घर ही मंदिर हो चुका है, बाहर का मंदिर तो जाएगा कौन। ये सब सर कहने के लिए, ये सब कहने के लिए है, ये सब ठीक है ना, कहने के लिए है। नहीं बाहर का मंदिर कहाँ जा रहा है कोई, अभी तो कोरोना में घर में ही पूजा हो रहा है। सब जा रहा है सर, सब जा रहा है, जा रहा है, सब जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो कल इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं, और कैसे दूर किया गया, या लेट्स से कि सौरव का डे 1 में उसका क्या माइंड में चल रहा था, उसको डिकोड करते हैं। उसको भी नहीं पता होगा शायद कि उसने ये डिसीजन कैसे लिया। सर एक क्वेश्चन इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कल के लिए, कि अगर लड़की को अप्रोच किया जाता है, जैसे उज्जवल ने काफी बार बोला, तो कहीं ना कहीं लड़की के दिमाग में वो लाइन मारने वाला एंगल रहता है। ठीक है, करेक्ट, वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन है, बायसेस है, तो उस पे भी बात करते हैं। आई थिंक उस पे ही बात करना है एक्चुअली, इसीलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आई थिंक वो तो बात ही नहीं किया ना। माय फर्स्ट एम्प्लॉय, जो हमारा एम्प्लॉय कोड है CD001, इज अ फीमेल एंड शी इज स्टिल विद द कंपनी। हाँ, तो ये पे समझना है इसको ना, कि कैसे खोजा और कैसे रिटेन किया, और ये है, और बाकी लोगों को भी समझाना है ये। लेट्स सी, आई डोंट नो, आई मीन अभी बहुत सारा, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। इंडिया में इतना बायसनेस घुसा हुआ है ना डीएनए में,
खत्म तो होना नहीं है। वीडियो में भी बायसनेस रहता है, सर मेरा डीएनए वीडियो में में भी नहीं, बायसनेस माइंड में। रहता है। ठीक है, वही डीएनए माइंड जो क्या भी है। विशाल सर, मेरा नहीं वीडियो में विशाल, भी आपने भी तो बायसनेस रहता कंट्री है। मैनेजर फीमेल को बनाया हुआ है, तो नहीं उसका नहीं, भी एक क्या मेल भी रीजन है, है, वो भी हमें जानना है। एक मेल भी है। सर नमन भी है मेरे से पहले से। कौन कौन से कंट्री के? अच्छा नहीं, कंट्री लेवल, अपने एक ही ही कंट्री लेवल। कंट्री। अरे कंट्री लेवल पे बेसिकली अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग मैनेजर बनाया है मैंने, वैसे करके बनाया है। ठीक है। तो थोड़ा सा स्मार्टली खेल सकते हैं इसमें भी। कंट्री से है ना कि कंट्री में भी बायसनेस है? कंट्री में करेक्ट, एक और प्रॉब्लम है। फीमेल आनी चाहिए। एक प्रॉब्लम है कि सेजल जो है, सेजल अपना मोनोपोली करके रखे हुए अपनी फ्रेंड्स को नहीं ला रही है, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो ये भी बात मेरे करते हैं। फ्रेंड्स जो है ना, वो मेरी फील्ड के हैं नहीं, वो सब अलग अलग फील्ड के। तो ये एक बायस तो स्टेटमेंट है। नहीं ये Anyway. बायस नहीं है ना, ये फैक्ट है कि वो अलग फील्ड के हैं, ये फैक्ट है। हाँ, बट उसके वजह से आ नहीं सकते हैं कि तुम सच बोल रही हो, हम लोग को किसे पता? तुम अभिषेक को किसी पार्टी में जा रही हो तो अपने फ्रेंड्स को ले जाओगे ना, तो ये भी पार्टी है 1.5 घंटे का, उसमें ले आओ फ्रेंड्स को। अब्दुल सर आना बहुत पसंद भी तो ज्यादा होना चाहिए ना, इंटरेस्टेड है। मतलब डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट भी तो होता है ना। Someone like it, ठीक है, someone चलो don't इस पे भी like बात कर लेंगे कि why Sejal doesn't bring her female friends to the GD। ठीक है ना? चलो ओके, अरे 11:38 हो गया। I mean, very rare। अच्छा ठीक है, तो ये भी पता करेंगे क्यों नहीं है फिर, ये भी बायसनेस है एक तरह का। मम्मी को तो लेके आ सकती हो। ठीक है।